کسی کا کوئی خط نہیں ملا، خط ملا بھی تو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور مزید بڑھے گا، پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا دورہ پاکستان، ایوان صدر آمد پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور آصفہ بھٹو نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے معزز مہمان سے مصافحہ کیا۔ ترک صدر کو مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاکستان اور ترکیے کے درمیان 24 معاہدوں اور MOUs پر دستخط، تجارتی حجم $5 ارب تک بڑھانے پر اتفاق۔ تجارت، دفاع اور دیگر شعبوں میں تعاون کو وسعت دی جائے گی۔ ایئر فورس، الیکٹرانک وارفیئر، توانائی، کانکنی، زرعی بیجوں کے تعاون کی مفاہمتی یادداشت، معاہدے اور MOUs پر وزیر اعظم اور ترک صدر نے دستخط کیے۔ ترکیے سے تعلقات صدیوں پر محیط ہیں، امید ہے ترک صدر کا دورہ بہت مثبت ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں تمام مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے مل کر کام کریں گے، کشمیر ہو یا غزہ۔ ترک صدر نے تمام مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی۔ دہشت گرد مذموم مظالم کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں، پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی سے نبرد آزما ہے۔ ترک صدر نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان ہمارا دوسرا گھر، قائد اعظم اور علامہ اقبال ہمارے بھی ہیرو ہیں، اپنے تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دے رہے ہیں، شاندار مہمان نوازی پر شکر گزار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترک خاتون اول سے ملاقات، ایمنا اردوان کی پاکستان آمد پر شکریہ ادا کیا۔ پاک ترک پارٹنرشپ برائے سسٹینیبلٹی کے تحت سرکولر اکانومی کی تقریب، مریم نواز نے کہا ستھرا پنجاب پروگرام انتہائی اہم اور انقلابی منصوبہ ہے، ہم نے ماحولیاتی تحفظ میں تاریخی تبدیلی لانے کا عزم کیا ہے، ستھرا پنجاب پروگرام سے مقامی معیشت بھی مستحکم ہوگی۔ پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن، زرعی انقلاب کی جانب ایک اور قدم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اہم حکومتی شخصیات، وفاقی اور صوبائی حکام کل گرین پاکستان انیشیٹو کے مختلف منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ سمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مال اور تحقیقی سہولت مراکز کا آغاز ہوگا۔ کارپوریٹ فارمنگ میں استعمال زرعی مشینری اور جدید ٹیکنالوجی کی نمائش ہوگی۔ زرعی شعبے کی ترقی اور جدت سے آگہی کے لیے حکومتی شخصیات کو پیروال اور مظفر گڑھ میں ماڈل فارمز کا دورہ کرایا جائے گا۔ آرمی چیف اور وفاقی اور صوبائی حکام کے دورے سے زرعی ترقیاتی منصوبوں کو مزید فروغ ملے گا۔ ملکی معیشت کے استحکام میں زرعی ترقی کے اہم کردار، SIFC اور GPI کی کاوشیں جاری ہیں۔ 9 مئی کو حد کر دی گئی، اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے؟ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں 9 مئی کا جرم سرزد ہوا ہے؟ سیولنز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ملزمان کا آزاد عدالت اور فیئر ٹرائل کا حق ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے فوج میں انجینئرنگ کور اور میڈیکل کور بھی ہوتی ہے، کیا فوج میں اب جوڈیشل کور بھی بنا دی جائے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا مسلح افواج کی جیک برانچ ہے۔ جسٹس امین الدین خان بولے یہ تو قانون سازوں کا کام ہے، ایک جرم سرزد ہوا تو سزا ایک ہوگی، یہ کیسے ہوگا ایک کا ملٹری ٹرائل ہو دوسرا ملزم اس سے الگ کر دیا جائے؟ جسٹس جمال نے استفسار کیا موجودہ نظام کے تحت سیولنز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا سیولنز کا کورٹ مارشل کسی صورت ممکن ہے۔ سپریم کورٹ میں نئے ججوں کی تقریب حلف برداری کل ہوگی، 6 مستقل اور 1 عارضی جج حلف اٹھائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے حلف برداری کی تقریب نوٹیفیکیشن میں تاخیر کے باعث کل تک مؤخر کی گئی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تعینات، مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی تک فرائض انجام دیں گے۔ جسٹس جنید غفار قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، جسٹس اعجاز سواتی قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، جسٹس SM عتیق شاہ قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کی بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات، ذرائع کا کہنا ہے سیاسی امور اور صوبے میں گورننس کے معاملات پر بھی بات چیت کی گئی۔ علی امین گنڈا پور میڈیا سے بات چیت کیے بغیر روانہ۔
मोटर साइकिल हो, डंपर हो या बस, अब सबको फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी रखना होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 30 दिन में है गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट कोई गाड़ी सड़क पर नहीं चलेगी। डंपर रात 10 से सुबह 6 बजे तक चलेंगे। बगैर लाइसेंस वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद इजलास में कहा, पुलिस फोर्स पीर से सड़कों पर दिखाई देनी चाहिए। पार्किंग माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद। शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील और कामरान गुलाम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। शाहीन पर मैच फीस का 25, कामरान और सऊद पर 10 फीसद जुर्माना आयद किया गया। तहरीके इंसाफ ने सूबा ठेके पर दिया हुआ है। करप्शन और बदअमनी उरूज पर है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बानी पीटीआई ने सिर्फ एनआरओ के लिए खत लिखा, यहाँ हादसा करने वाले को तो पकड़ लिया जाता है, मुल्क के खिलाफ काम करने पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। गवर्नर हाउस में आम कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, सबको दावत देंगे। कराची में तजावुजात के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत की नई हिकमत अमली। पथारों के खिलाफ कार्रवाई से पहले तमाम स्टेक होल्डर से राब्ता। नून लीग सिंध के रहनुमाओं से मुलाकात। वकार मेहदी कहते हैं, पीपी वफ्द तजावुजात के मामले पर जमात इस्लामी से भी मुलाकात कर चुका। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और दीगर से भी राब्ते में है। मेयर मुर्तजा वहाब का कहना है, तजावुजात के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ट्रैफिक का निजाम बेहतर करने के लिए तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तखरीबी कार्रवाइयां बेनकाब। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस की आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गई। एलओसी पर धमाका खेज मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल की कोशिश। 4 ta 6 फरवरी बटल सेक्टर और रावलाकोट में 4 भारतीय IEDs बरामद हुई। IEDs के धमाके से एक शहरी शहीद भी हुआ। गुज़श्ता रोज भारतीय फौज ने देवा और बागेसर सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की। 2 जवान जख्मी हुए। पाकिस्तान ने पूंछ, बाग, कोटली, मीरपुर और रावलाकोट में बदअमनी फैलाने पर एहतजाज किया। इन इलाकों में UN हुकाम के साथ भारतीय तकरीबी सरगर्मियों के शवाहिद का तबादला किया गया। तनख्वाहदार तबके ने होल सेलर और रिटेलर से कहीं ज्यादा इनकम टैक्स दिया। गुज़श्ता साल के निस्बत रवा माली साल तनख्वाहदारों के टैक्स में 99 अरब रुपए का इजाफा। जुलाई से जनवरी तक तनख्वाहदारों ने 284 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया। होल सेलर्स ने 13.7, रिटेलर्स ने 19.4 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया। प्रॉपर्टी की फरोख्त पर 63, खरीदारी पर 65 अरब इनकम टैक्स जमा हुआ। शाहीनों की नेशनल स्टेडियम कराची में तारीखी फतह। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को हराकर ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह बना ली। अहम मैच में रिकॉर्ड हदफ हासिल करके 6 विकेट से मैदान मारा। 353 रन का पहाड़ जैसा हदफ 1 ओवर पहले हासिल किया। कप्तान और नायब कप्तान प्रोटियस के सामने चट्टान बन गए। 134 रन की शानदार इनिंग्स पर सलमान आगा मैच के हीरो करार। कप्तान रिजवान 122 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त। कौमी टीम सीरीज के फाइनल में कल न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सिंध हुकूमत का यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल फिर काबीना और असेंबली से मंजूर कराने का फैसला। सिंध काबीना हफ्ते को जामियात तरमीमी बिल पर गवर्नर के एतराजात पर गौर करेगी। सिंध काबीना से दोबारा मंजूरी के बाद सिंध असेंबली से जामियात तरमीमी बिल मंजूर कराया जाएगा। गवर्नर सिंध दोबारा बिल को मंजूर न करें तो 10 रोज में कानून का हिस्सा बन जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना स्टेडियम का दौरा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जिन्ना स्टेडियम में नेजाबाजी मुकाबले कराने से इनकार। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। PSB का कहना है टेंट पेगिंग, हॉर्स एंड कैटल शो का जिन्ना स्टेडियम में इनकार मुमकिन नहीं। नेजाबाजी मुकाबले मुनक्किद होने से स्टेडियम तबाह हो जाएगा। स्टेडियम में रवायती त्यौहारों की मनसूबाबंदी करना मुनासिब नहीं। जिन्ना स्टेडियम ने सैफ गेम्स की मेजबानी करनी है।
पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज का बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। ASI मोहम्मद शाहिद पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़िमान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। DIG ऑपरेशंस ने बताया, इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम मुजंग में इश्तिहारी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए गई थी। इश्तिहारी मुल्जिम ने साथियों के हमरा पुलिस टीम पर हमला करके तशद्दुद किया था, जिससे ASI मोहम्मद शाहिद जाम बहक हुआ। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस बैनुल-अक़वामी गैंग की खातून एजेंट फैसलाबाद से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमा हुमैरा कंवल शहरियों को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर रकम बटोरने में मुलव्विस थी। गजा में जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए सालिस मुतहर्रिक। काहिरा में मिस्र और कतर के मुज़ाकरातकार की हमास के वक्त से मुलाकात। हमास रहनुमा का कहना है, कवी इम्कान है मंसूबे के मुताबिक हफ्ते को 3 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए जाएंगे। इसराइली वजीर दफा ने धमकी देते हुए कहा, हफ्ते को यरगमाली रिहा नहीं किए तो जंग फिर शुरू कर देंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर और अमरीकी वजीर खारजा के दरमियान फोन पर गुफ्तगू। UAE सदर का 2 रियासती हल की हिमायत का इरादा। मिस्री हुकाम का कहना है, गजा से फलस्तीनियों की बेदखली एजेंडे में हुई तो मिस्री सदर व्हाइट हाउस की किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। चीन ने भी दो टोक कह दिया, गजा वालों की जबरी मुंतकली की हिमायत नहीं की जा सकती। यूक्रेन के लिए अमरीकी पॉलिसी तब्दील हो गई। ट्रंप और पुतिन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात शुरू करने पर रज़ामंद। टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ट्रंप का आला अमरीकी हुकाम को यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म। पुतिन ने सदर ट्रंप को दौरे मॉस्को की दावत भी दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, उनकी सदर पुतिन से मुलाकात सऊदी अरब में होगी। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है, पुतिन और ट्रंप के दरमियान 1.5 घंटे बात हुई। अमरीकी सदर ने रूस के साथ फौरी मुज़ाकरात शुरू करने, राब्ते जारी रखने और बिलमुशाफा मुलाकात पर इत्तफाक किया। मशरिक़ वुस्ता, दो तरफा ताल्लुकात समेत कैदियों के तबादले पर भी बात हुई। अमेरिका अब यूरोप में सिक्योरिटी का बुनियादी ज़ामिन नहीं रहा। अमेरिकी वजीर दफा पैट हेग्सेथ का कहना है, अब कोई अमेरिकी फौजी यूक्रेन में नहीं जाएगा। यूरोप को यूक्रेन के दफा में क़यादत संभालनी होगी। यूरोपीय नेटो अरकान दिफाई बजट को GDP के 5% तक बढ़ाएं। यूरोप को मुस्तकबिल में यूक्रेन को इमदाद का ज़्यादातर हिस्सा फराहम करना होगा। यूक्रेन की 2014 से पहले के सरहदों की बहाली गैर हकीकत पसंदाना है। ख्याली मकसद का पीछा करना सिर्फ जंग को टूल देगा। यूक्रेन की नेटो रुकनीयत किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं होगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाशिंगटन DC पहुंच गए। आज सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। ट्रंप मोदी मुलाकात से कबल सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का कैपिटल हिल का दौरा। कांग्रेस अरकान को कातलाना हमला साजिश में मोदी की मुलव्विस होने के सबूत दिए। सिख कम्युनिटी और भारत की दीगर अक़लियतें व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज करेंगी। मुल्क भर में शब बारात आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। लोगों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी। और तरक्की पसंद अहद साज शायर फैज़ अहमद फैज़ का यौम पैदाइश। इनकलाबी फ़िक्र से दुनिया को अपना गर्दीदा बनाया। उन्हें इल्मी और अदबी खिदमात पर मुतादिद आलमी और कौमी एजाज़ात से नवाजा गया।